dear friends and student. I welcome you again on my YouTube channel, Education for Innovation. Uh, in the previous video, I have explained what is the Python programming language, what are the features of Python programming language, and what are the fundamental of the Python programming language. So इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. As you all know that the CBSE had changed their pattern of the paper. So in the paper you have objective type questions, OTQs also. So इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की. एंड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैंने लिया है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन एंड पाइथन फंडामेंटल, जो आपके आईपी एंड सीएस के अंदर चैप्टर्स हैं दो, वहां से लिए हैं. कुछ इंपॉर्टेंट एंड जनरल क्वेश्चंस है, ट्राई करेंगे उन सभी के आंसर्स को फाइंड आउट करने की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट the simple question and answer on the Python programming language from the topics getting started with Python and Python fundamental. Okay, the first question of this video is, who developed Python programming language? So the Python programming language is developed by the Guido von Rossum. He developed the Python programming language in the year 1991. In the year 1991, and the Python programming language is inspired by two programming languages. One is the ABC programming language and second is the Modular 3 programming language. Okay, so he developed the Python programming language in the year 1991. The next question is, ideally stands for integrated development learning environment. Okay, we use Python programming language on the particular platform, like I have used IDLE. Okay, and you can use Spider also in the available in the Anaconda distribution. You can use PyCharm. Okay, so here IDLE stands for integrated development learning environment. Now the next one is, what is the extension of Python file? As all of you know about it, the Python programs will be saved with the .py extension. Okay. Now the next one is the Python case sensitive? The meaning of case sensitive is uppercase and lowercase will be treated as different. Okay. So Python is case sensitive. Yes, it is case sensitive because if we declare any variable with a capital A, suppose that with the value 50 and small a is 100, when you write print statement, print A, so it will display 50. Okay, so the Python is case sensitive. In this, uppercase and lowercase will be treated as different. Now the next one is, we can use keyword as an identifier. Keywords are the reserved word and they have some special meaning in the programming language, and according to the identifier naming rules, we can't use identifier as an keywords as an identifier. So the statement is false. We can use keywords as an identifier. The statement is false. Okay. Now the next one is, list and dictionary are the mutable data type. True and false. List and the first one, I want to tell you what are the mutable data type. Mutable data type means the data types that allow modification, in which you can add new things, you can update something, and you can delete something. Okay, if any data type allow these three tasks in their content, that means it is the mutable data type. Otherwise it is immutable data type. So according to this question, list and dictionary. So all of you know about the list. In the list we can use append method, insert method. Okay, we can add some new data in the list, and as it is same in the dictionary we can add new things. So list and dictionary both are the mutable data type, so the statement is completely true. So the statement is true here. Okay, now that move to the next one. We can change data in immutable type. Immutable, the statement is false. Reason, because the mutable type will allow the modification in the data. Immutable type के अंदर हम कोई भी changes perform नहीं कर सकते हैं. So we can change data in immutable type. The statement is false. Okay, so the result is false here.
आप इम्यूटेबल टाइप में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये एडिशन, अपडेशन, डिलीशन का टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज boolean is considered as subset data type of integer. So boolean data type, basically if we see the boolean data, it has true and false in which t and f both are capital. अभी पीछे आया था पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेजेस, so t और f यहाँ पर कैपिटल रहेगा। एंड boolean in the python, boolean data type is the subset type of the integer. The statement is completely true because in the python programming language, to represent the true we use 1 and to represent false 0. okay, and bool is the function, bool एक फंक्शन है जो किसी भी टाइप के डेटा को boolean उसके इक्वलेंट, जैसे आपने स्पेसिफाई किया 5, तो ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है। हमने पीछे वीडियो के अंदर भी देखा था इसको, ठीक है। सो ये क्या करेगा? इक्वलेंट बूल फंक्शन क्या करता है? कोई भी डेटा है उसके इक्वलेंट बूलियन क्या होगा? वो रिटर्न करता है। देन boolean is considered as a subset type of the integer. The statement is completely true because 0 and 1, 0 will represent false and 1 will represent true. So the statement is true. Now move to the next one. Now, what is the maximum possible length of an identifier? आप identifier I think पता है सभी को। If you want to identify something, if you want to give name for the particular variable, किसी भी method को name provide करना है, किसी class का name specify करना है, किसी भी ब्लॉक को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर यूज में लेते हैं। देन आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स के अंदर हमने काफी सारे रूल्स कवर किए थे एंड उसमें एक रूल था आइडेंटिफायर नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जितना बड़ा आपको नेम यूज में लेना, आप उतना बड़ा नेम यूज में ले सकते हो। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास में, इनमें से 31 करेक्टर इनकरेक्ट है, नहीं 63 इनकरेक्ट है एंड यहाँ पर 89 इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? नन ऑफ द मेंशन। आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जितना बड़ा आपको नेम यूज में लेना है उतना बड़ा आप नेम यूज में ले सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिफायर? वैलिड आइडेंटिफायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हमें आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स पता होने चाहिए। एक बार के लिए मैं रिवाइज करा देता हूं आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स, the rule number 1 is the name can contain alphabets. इसके पास में अल्फाबेट्स आ सकते हैं, वो कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। यू कैन यूज ओनली 1 अंडरस्कोर साइन एंड यू कैन यूज 0 to 9 डिजिट्स। दिस इज द रूल नंबर 1। ये आपका रूल नंबर 1 रहेगा। आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स काफी इंपॉर्टेंट, आपको पता होने चाहिए। नाउ द रूल नंबर 2, the name should not begin with the 0, should not start with 0. This is the rule number 2. That means 2a is invalid and a2 is valid. Okay, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका जो आइडेंटिफायर नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, देन रूल नंबर 3 है आपका स्पेस आर नॉट अलाउड। स्पेस नहीं होना चाहिए, कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स में। रूल नंबर 4 है आपका आपका जो कीवर्ड्स हैं, keywords are the reserve word, so you can't use them as an identifier. keywords कभी भी नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह से आप यूज में नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। रूल नंबर 5 हमने अभी डिस्कस किया था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। इनकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। जितना बड़ा भी आप नेम लेना चाह रहे हो उतना बड़ा आप नेम ले सकते हो। ओके, ये कुछ रूल्स है। देन डेफिनेटली स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल्स यू कैन यूज ओनली वन स्पेशल सिंबल, दैट इज अंडरस्कोर साइन। बाकी जितने भी सिंबल्स हैं वो आप यूज में नहीं लोगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए CS अंडरस्कोर IP, ये कोई कीवर्ड भी नहीं है, अंडरस्कोर आ रहा है, तो ये क्या है? आपका वैलिड आइडेंटिफायर है। CS IP इनवैलिड होगा, क्यों? बीच में एक स्पेस आ रहा है। स्पेस आर नॉट अलाउड इन द आइडेंटिफायर नेमिंग रूल। रूल नंबर 3 आपका ये है। CS एंड IP एम्परसेंड साइन यूज में ले रखा है। स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड, नन ऑफ द मेंशन, नहीं, बिल्कुल ये भी इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि CS अंडरस्कोर IP इज द वैलिड आइडेंटिफायर। सो ये जो आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स है ये आपको पता होना चाहिए। जनरली पेपर के अंदर क्या होता है, आपके एरर फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें हो सकता है कि आपको इनवैलिड आइडेंटिफायर दिया हो। बाकी डायरेक्टली भी पूछा जाता है एंड ये भी पूछा जा सकता है कि आपका ये पर्टिकुलर आइडेंटिफायर
वैलिड है या फिर इनवैलिड है, आपको जस्टिफाई भी करना आपके रिजल्ट को। मीन्स यदि वो वैलिड है तो क्यों वैलिड है, और इनवैलिड है तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी आपको बताना होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आई थिंक सभी को याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने कवर किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे हम जे से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट को। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो 20.4 दिस इज द फ्लोट डेटा, सो ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। देन 2.2 प्लस 10.3 ये भी नहीं हो सकता, दोनों ही रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड वन 2.4 प्लस 3j, एक और देखते हैं 20 प्लस 12। सो इसमें क्या है 2.4 प्लस 3j, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो 2.4 है ये तो क्या है रियल पार्ट है, ये तो है रियल पार्ट, और जिसके आगे जे लिखा हुआ है लास्ट वाला ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। And if you want to access the individual part, then you can use complex number dot real। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ए है आपका, एक वेरिएबल के पास में स्टोर है, तो आप ए डॉट रियल करोगे तो क्या देगा ये ए डॉट रियल करेंगे तो हम क्या देगा, ये 2.4 देगा। और ए डॉट इमेज करेंगे इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करने के लिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा 3.0 रिटर्न करेगा। ये दोनों ही फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, नाउ सो द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, द वैल्यू इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ which is the correct operator for power xy। x पावर y हमें फाइंड आउट करना है, जैसे आपको 2 पावर 3 फाइंड आउट करना है, तो पाइथन के अंदर हम कौन सा ऑपरेटर यूज में लेते हैं। सो आई थिंक हमने ऑपरेटर्स में ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन वाला वीडियो था मेरा, उसमें हमने कवर किया था। पावर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, 2 स्टार साइन यूज में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा x इंटू वाई, ये पावर सिंबल है आपका। ओके, सो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ये हो गया आपका बी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ दिस इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन देखिए, इसमें हमारे पास में पाइथन के अंदर दो साइन है डिवीजन के, एक तो सिंगल स्लैश है और एक डबल स्लैश है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका जो रिजल्ट सिंगल स्लैश का जो रिजल्ट है, जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट क्या आता है हमारा 2.5 आता है। सो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। बट फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, यदि हमने 5 को फ्लोर डिवीजन किया है 2 से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, डेसिमल वैल्यूज को ये हटा देता है, इंटीजर। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर किस में आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, नंबर को रिड्यूस करके आ रहा है। ओके, सो ये तो नहीं हो सकता, इसका तो रिजल्ट नहीं आ रहा है ऐसे। देन दिस वन, ये इनकरेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस इज द मॉडुलस ऑपरेटर, सो दिस इज इनकरेक्ट, नन ऑफ दिस मेंशन, ये भी इनकरेक्ट होगा। सो डबल स्लैश साइन हम यूज में लेते हैं फ्लोर डिवीजन के लिए। ओके, यदि आपको आपका रिजल्ट पॉइंट्स के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, आप डिवीजन नहीं करना चाह रहे हो आगे डेसिमल के अंदर, उसके लिए हम डबल स्लैश साइन यूज में लेते हैं पाइथन के अंदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए, पेपर के अंदर आप लोगों को आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए काफी सारी एक्सप्रेशंस मिलेंगी, एंड इवन ये जो छोटी एक्सप्रेशन है इसमें आगे और एक्सप्रेशंस भी आएंगी। देन एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम एक्सप्रेशंस को किस तरह से सोल्व करेंगे, कैसे उसका आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ आफ्टर दिस वीडियो। ओके, नाउ 44 मॉडुलस 5। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, देखिए मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या है, 44 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, 8 टाइम डिवीजन हुआ, रिमाइंडर क्या बचा 4, सो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। सो द मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ द नंबर, सो इसका रिजल्ट क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज 3 9 इनकरेक्ट है, सी 4, तो सी इसका ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, 4 इसका रिजल्ट आएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है आपकी 1 इंटू 3 इंटू 1
इंटू 3। सो यहाँ पर देखिए आपके पास में हमने जब ऑपरेटर्स कवर किए थे उसमें हमने एक ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रूल एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल देखा था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल, द पावर सिंबल कौन सा है, ये वाला, द पावर सिंबल हैज हायर प्रेसिडेंसी देन द मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहली चीज। एंड यदि आपके पास पावर सिंबल आ रहा है तो वो एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होगी, वो एक्सप्रेशन सोल्व होगी आपकी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट साइड से आप जाओगे लेफ्ट साइड की ओर, तो सबसे पहले क्या करेगा ये 1 पावर 3 फाइंड आउट करेगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होगी आपकी 1 पावर 3, 1 पावर 3 क्या होगा 1, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 में क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 3। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कैसे सोल्व हुआ ये। आपका जो पावर ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंसी हायर होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हायर प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना है। अब और आपका जो पावर ऑपरेटर है इसकी जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड की ओर मूव करना है। अब ज्यादा बेटर तो ये करूं मैं, राइट टू लेफ्ट है। ओके, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। सो 1 पावर 3 पहले फाइंड आउट करेंगे, 1 पावर 3 का रिजल्ट आ जाएगा 1, देन 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका 3। 27 इनकरेक्ट है, 9 इनकरेक्ट है, 3 इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी। आईडी देखिए हमने वेरिएबल वाला टॉपिक कवर किया था, वेरिएबल। देन वेरिएबल के अंदर मैंने 3 की एट्रीब्यूट्स बताए थे वेरिएबल के, वन इज द वैल्यू, सेकंड इज द आईडी, एंड थर्ड वन इज द टाइप। वैल्यू को एक्सेस करने के लिए तो हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे ए नेम से एक वेरिएबल या इक्वल टू 10 कर दिया, जब हम करवाएंगे प्रिंट ए तो क्या करेगा ये ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। सो वेरिएबल के नेम के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, ये जो वैल्यू 10 है ये कहीं ना कहीं किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर होगी, वो मेमोरी एड्रेस हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, हम आईडी फंक्शन यूज में लेते हैं। आईडी ऑफ वेरिएबल ए। जैसे आपने ये किया तो ये क्या डिस्प्ले करेगा 10028। तो 10028 ये क्या है, एक मेमोरी एड्रेस है, और इसकी जो डाटा टाइप होती है वो हमेशा इंटीजर होती है। ओके, सो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये 3 की एट्रीब्यूट्स हैं, ये जरूर याद रखने हैं, वैल्यू, आईडी एंड टाइप। इफ यू वांट टू एक्सेस टाइप ऑफ द वेरिएबल देन वी यूज टाइप देन वेरिएबल ए। सो ये क्या रिटर्न करेगा, क्लास इंट, ये क्लास इंट को रिटर्न करेगा। ओके, पाइथन के अंदर जो भी चीजें होती है वो क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है, तो यहाँ पर ये क्लास इंट को रिटर्न करेगा। ओके, सो द रिजल्ट इज int, float, bool एंड डिक्शनरी। ओके, सो द रिजल्ट इज int, आपका जो रिजल्ट है वो int होगा, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज which of these in not a core data type। कोर डेटा टाइप्स की यदि हम बात करें, पाइथन के पास में काफी सारी कोर डेटा टाइप है, तो इनमें से कौन सी कोर डेटा टाइप नहीं है। लिस्ट एक कोर डेटा टाइप है, डिक्शनरी भी कोर डेटा टाइप है, टपल्स भी एक कोर डेटा टाइप है। यहाँ पर लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल है, और टपल क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। बट क्लास कोई ये कोर डेटा टाइप का पार्ट नहीं है। ओके, सो क्लास इसमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक बार वापस से एक नई एक्सप्रेशन हमारे पास में आई है, इसकी बात करते हैं। देन इसके अंदर क्या है, एक टाइप कास्ट ऑपरेटर भी उसमें लिया गया है, int और फ्लोट। सो देखिए फ्लोट 4 ये तो बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 प्लस int 2.39। अब ये क्या करेगा, int 2.39 ये क्या करेगा, ओनली 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने 2.39 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देगा 0.39 हट जाएगा, तो रिजल्ट क्या है 2। अब 2 का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे 2 से, तो रिजल्ट क्या आएगा
0। 2 का हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया। यदि हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, वन टाइम डिवीजन हुआ, रिमाइंडर क्या बचा 0। सो यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर ही रिटर्न करता है। सो इसने क्या रिटर्न किया 0। 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 के बाहर लिखा है फ्लोट, तो क्या करेगा ये 4, इसका रिजल्ट आया 4, फ्लोट डेटा है 4.0। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4.0 आएगा। ध्यान रखना 4 एंड 4.0 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 4 एक इंटीजर डेटा है और 4.0 एक फ्लोट डेटा है। ओके, सो हमने यहाँ पर इंटीजर डेटा को फ्लोट में यदि टाइप कास्ट करवाया तो ये क्या करेगा, इसको 4.0 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, so the result is 4.0, so the result is C। यहाँ पर आपका जो C वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। Okay, now the next is which of the following expression which of the following represent bitwise XOR operator। bitwise operators हैं हमारे पास में पाइथन में जो इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर टास्क परफॉर्म करते हैं। इनमें से कौन सा सिंबल है जो हम XOR के लिए यूज में लेते हैं। सो यहाँ पर B जो आपका सिंबल है ये आपका बिटवाइज XOR का ऑपरेटर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका which among the following list of operators has the highest precedency। हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होगी। सो अभी हमने एक एक्सप्रेशन सोल्व किया था, उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि मैंने क्या किया था, सबसे पहले पावर वाले ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया था, है ना। तो यहां पर इन सभी ऑपरेटर्स की यदि हम बात करते हैं तो पावर वाला जो ऑपरेटर है इसकी सबसे हायर प्रेसिडेंसी है। यस, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, पावर ऑपरेटर आ गया, इनमें बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन है यहाँ पर आपके पास में, तो और कॉमा से सेपरेट है, तो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट आएगा वो टपल्स के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए हम टपल यूज में लेते हैं। सो चलो देखते हैं 24 इंटीजर फ्लोर डिवीजन 6 है, तो फ्लोर डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा। फ्लोर डिवीजन का जो रिजल्ट है वो आपका इंटीजर फॉर्मेट में आएगा यहाँ पर। सो 6 4 जा 24। सो यदि मैं इसको सोल्व करता हूं 24 मॉडुलस 6, सो इसका रिजल्ट आएगा 4, सॉरी 24 इंटीजर डिवीजन 6, इसका रिजल्ट आएगा 4। देन इसका रिमाइंडर हमने फाइंड आउट किया 3 से, तो रिजल्ट क्या आएगा 1, इसका रिमाइंडर बचेगा 1। करेक्ट है। देन यहां पर देखिए अब हमने इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट किया, क्यों, क्योंकि मॉडुलस और डिवीजन दोनों सेम ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंसी अपने पास में रखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं 24 डिवाइड बाई 4, सो द रिजल्ट विल बी 6। 6 4 is 24, then divide by 2, so the result will be 3, so the result is 1 comma 3। okay, so the result is 1 comma 3 is the first option, आपका यहाँ पर ये करेक्ट रहेगा। बाकी ये 0 comma 3 इनकरेक्ट है, 1 comma 0 इनकरेक्ट है और 3 comma 1 इनकरेक्ट है। okay, now the next one is what is the output of the following expression। again expression का output आपको find out करना है। then 4.00 divide by 2.0 plus 2.0, so bracket has higher precedency, so सबसे पहले आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। so the result is 4.0, then 4.0 को 4.00 से ही डिवाइड करना है, so the result will be 1.0, error 1.0 1.001, the result will be 1.0। okay, now the next one is consider the expression given below, the value of a is, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। देन इसमें देखिए आपके पास में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो इनर मोस्ट ब्रैकेट आपको सबसे पहले उसको सोल्व करना, बिकॉज द ब्रैकेट हैज हायर प्रेसिडेंसी, राइट ना। सो इसमें सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट में 3 into 12 लिखा है, सो 3 into 12 की यदि हम बात करें इट इज 36। ओके, बाकी एक्सप्रेशन को एज इट इज नोट कर दीजिए एक बार के लिए, इंटू
देन -8 डिवाइड बाई 10, सॉरी 10। अब आपको क्या करना है, 36 माइनस 8 करना है। सो 36 माइनस 8, तो ये हो गए 28। 28 इंटू 9 प्लस 2, ये पहले एक्सप्रेशन हो गई, डिवाइड बाई 10, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 9, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैज सेम प्रायोरिटी, सो हम एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे। एंड लेफ्ट टू राइट में देखिए क्या है, 9 इंटू 28 आ रहा है। सो द 9 इंटू 28 इज 252। 252, इससे पहले है आपका प्लस 2 डिवाइड बाई 10। नाउ division has higher priority than the plus operator, so firstly divide the value. So 25.2 is the result of the division plus 2, so we will get 27.2. Now 27.2 is the correct answer, and you have here 4 options in which the last option 27.2 is the correct answer. ओके, दिस द वे हाउ टू सोल्व द एक्सप्रेशन। आपको पहले चेक करना होगा कि कौन सा ऑपरेटर है जिसकी हायर प्रेसिडेंसी है, सबसे पहले आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद में लोअर प्रायोरिटी के ऊपर जाओगे। इट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। देन अभी ये जो एक्सप्रेशंस हमने सोल्व किए हैं, इस टाइप की और एक्सरसाइज में इंक्लूड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, उसके अंदर हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउटपुट ऑफ द डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन पाइथन। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट इससे पहले यदि आपको प्रीवियस इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, या फिर आपके पास में ऐसे कोई और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। पर्सनली यदि आप मेल करना चाह रहे हो तो मेल कर लीजिए। Okay, and like the video, subscribe my channel if you haven't subscribed it. Thanks for watching. Thank you very much. Have a nice day.